Hello everyone, welcome to Legal Update, and today's topic for discussion is criminal proceedings under section 363 of the Indian Penal Code. Why news? Recently the Allahabad High Court in Himanshu Dubey versus State of UP and another quashed criminal proceedings under section 363 of the Indian Penal Code, emphasizing that merely talking to a victim cannot constitute enticing away for kidnapping charges. Background of the case: an FIR was lodged on December 25, 2020, alleging that the applicant has enticed away the niece of the informant aged 16 years on December 24, 2020. The victim stated that she left home voluntarily on December 23, 2020 due to the family harassment, particularly after being beaten and given an electric shock by her family for conversing with the applicant. The medical examination confirmed that the victim voluntarily left home. The X-ray showed the victim's age to be approximately 18 years. The victim's statement under Section 164 of CRPC recorded on January 1, 2021 clarified that she left home on her own and her family had wrongly implicated the applicant. The charge sheet under Section 363 of the IPC was filed on January 19, 2021, but the victim was not listed as a witness. Only the informant and her mother were included. What were the court observations? Justice Vikram D. Chauhan examined Section 361 of the IPC, which defines kidnapping from lawful guardianship, requiring taking or enticing any minor under 18 years, female, out of lawful guardians keeping without consent. Justice Chauhan emphasized that for Section 361 to apply, there must be a promise, offer, inducement, or force from the accused resulting in the minor being taken away or enticed from lawful guardianship. Provisions involved are: first, Section 363 of the IPC, which prescribes punishment for kidnapping, which includes kidnapping from India or from lawful guardianship. The punishment may extend to 7 years of imprisonment and a fine. Second, Section 137 of BNS. This provision mirrors Section 363 of the IPC in the new criminal code and maintains the same punishment framework for kidnapping offences. Case laws involved are: first, the court relied on Thakorlal D. Yaddama versus State of Gujarat, which established that if a minor leaves paternal home completely uninfluenced by any promise, offer, or inducement emanating from the guilty party, no offence under Section 361 IPC is committed. Second, reference was made to S. Vardarajan versus State of Madras, distinguishing between talking and allowing a minor to accompany requiring some kind of inducement or active participation in forming the minor's intention to leave. It's the time for practice question. Which of the following is required for Section 361 of the IPC to apply? Option A, force or inducement. Option B, voluntary departure of a minor. Option C, family consent. And option D, none of these. Pin down your answers in the comment section below. आईपीसी की धारा 363 के तहत आपराधिक कार्रवाई। चलिए सबसे पहले देखते हैं कि ये पूरा टॉपिक चर्चा में क्यों है। हाल ही में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने हिमांशु दुबे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य मामले में भारतीय दंड संहिता यानी आईपीसी की धारा 363 के तहत आपराधिक कार्रवाई को रद्द कर दिया तथा इस बात पर जोर दिया कि केवल पीड़ित से बात करना अपहरण के आरोपों के लिए उसे बहकाना नहीं माना जा सकता। चलिए इस मामले की पृष्ठभूमि को जानते हैं। 25 दिसंबर 2020 को एक एफआईआर दर्ज की गई थी जिसमें आरोप लगाया गया था कि आवेदक ने 24 दिसंबर 2020 को सूचना देने वाले की 16 वर्षीय भतीजी को बहला फुसलाकर भगा लिया था। पीड़िता ने कहा कि उसने पारिवारिक उत्पीड़न के कारण विशेष रूप से आवेदक के साथ बातचीत करने के लिए उसके परिवार द्वारा पीटे जाने और बिजली का झटका दिए जाने के बाद 23 दिसंबर 2020 को स्वेच्छा से घर छोड़ दिया था। मेडिकल जांच से पुष्टि हुई कि पीड़िता स्वेच्छा से घर से गई थी। एक्सरे से पता चला कि पीड़िता की उम्र लगभग 18 वर्ष है। 1 जनवरी 2021 को दर्ज किए गए सीआरपीसी की धारा 164 के तहत पीड़िता के बयान में स्पष्ट किया गया कि वह अपनी इच्छा से घर से गई थी और उसके परिवार ने आवेदक को गलत तरीके से फंसाया था। धारा 363 आईपीसी के तहत आरोप पत्र 19 जनवरी 2021 को दायर किया गया था, लेकिन पीड़िता को गवाह के रूप में सूचीबद्ध नहीं किया गया था। केवल मुखबिर और उसकी मां को ही शामिल किया गया था। आइए अब जानते हैं इस मामले में न्यायालय की क्या टिप्पणियां रही। न्यायमूर्ति विक्रम डी चौहान ने आईपीसी की धारा 361 की जांच की, जो वैध संरक्षकता से अपहरण को परिभाषित करती है।
जिसमें 18 वर्ष से कम उम्र की किसी भी नाबालिग महिला को सहमति के बिना वैध संरक्षक की देखभाल से बाहर ले जाने या फुसलाने की आवश्यकता होती है। न्यायमूर्ति चौहान ने इस बात पर जोर दिया कि धारा 361 लागू होने के लिए अभियुक्त की ओर से वादा, प्रस्ताव, प्रलोभन या बल होना चाहिए, जिसके परिणाम स्वरूप नाबालिग को वैध संरक्षकता से दूर ले जाया जा सके या बहकाया जा सके। आइए अब जानते हैं इस मामले में शामिल प्रावधानों के विषय में। भारतीय दंड संहिता की धारा 363 अपहरण के लिए दंड का प्रावधान करती है, जिसमें भारत से या वैध संरक्षकता से अपहरण शामिल है। इसकी सजा 7 साल की कैद और जुर्माने तक हो सकती है। धारा 137 बीएनएस भारतीय न्याय संहिता 2023 यह प्रावधान नए आपराधिक संहिता में आईपीसी की धारा 363 को प्रतिबिंबित करता है और अपहरण के अपराधों के लिए समान दंड ढांचे को बनाए रखता है। आइए अब जानते हैं इस मामले में शामिल कानूनों के बारे में। न्यायालय ने ठाकुर लाल डी यादगदामा बनाम गुजरात राज्य 1973 के मामले पर भरोसा किया, जिसमें स्थापित किया गया था कि यदि कोई नाबालिग दोषी पक्ष की ओर से दिए गए किसी भी वादे, प्रस्ताव या प्रलोभन से पूरी तरह अप्रभावित होकर माता पिता का घर छोड़ता है तो धारा 361 आईपीसी के तहत कोई अपराध नहीं होता है। एस वरदराजन बनाम मद्रास राज्य 1965 का संदर्भ दिया गया, जिसमें ले जाने और नाबालिग को साथ जाने की अनुमति देने के बीच अंतर किया गया, जिसमें नाबालिग के छोड़ने के इरादे को बनाने में किसी प्रकार के प्रलोभन या सक्रिय भागीदारी की आवश्यकता होती है। चलिए अब देखते हैं इससे जुड़े हुए अभ्यास प्रश्न को। भारतीय दंड संहिता की धारा 361 के लागू होने के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? आपके सामने ऑप्शंस हैं: बल या प्रलोभन, नाबालिग का स्वैच्छिक प्रस्थान, परिवार की सहमति या उपरोक्त में से कोई नहीं। इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर दीजिए। धन्यवाद।